हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द वीडियो फॉर क्लास 8 साइंस चैप्टर 4। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कंसिडर सम सिमिलर एलिमेंट्स कॉपर, गोल्ड, कार्बन, सिल्वर, आइकन एंड आयरन है। ये आइकन नहीं है, आइकन लिखा हुआ है, गलत है। सल्फर। इफ यू हैड डिवाइडेड टू दीज एलिमेंट्स इनटू टू ग्रुप्स, हाउ वुड यू डू इट? कैसे करोगे आप दो ग्रुप्स में इन्हें डिवाइड? वी आर अवेयर दैट ईच एलिमेंट डिस्प्लेज अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज. There are differences as well as similarities in the properties of these metals. We can classify all the elements in two large groups according to the properties. These groups are metals and non-metals. या तो metal होगा non metal. Metals and non-metals have many obvious physical properties that make them different from each other. Elements from both of these categories are used in our daily life. Daily life में use होते हैं दोनों categories के metals. We are surrounded by metals. Car, buses, bridge, trains, railway line, ships, and many more things are made up using metals. We can use materials for so many different jobs because of their useful properties. In some ways, non-metals are very useful for us. Physical properties of metals and non-metals. दोनों की properties पढ़ेंगे physical. Physical properties include physical state. फिजिकल स्टेट होती है लस्टर, कलर, हार्डनेस, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड सोनोरिटी. तो फिजिकल स्टेट पढ़ता है मेटल्स की पहले. मेटल्स आर गेटिंग जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. सॉलिड पत्थर जैसे होते हैं बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे. एक्सेप्शन होता है इसमें मरकरी लिक्विड होता है जो आपके थर्मोमीटर में भरते हैं, उसे पारा कहते हैं हिंदी में. Non-metals. Almost all non-metals are solid or gases at room temperature. Bromine is the only non-metal that exists in liquid form in room temperature. Solid और गैस के फॉर्म में होते हैं non-metals सारे के सारे, बस ब्रोमाइन होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे. Luster. Metals glitter as shiny surface is the property of most metals. शाइन मारते हैं जो metals, ये प्रॉपर्टी है. The property is called luster. Luster कहते हैं इस प्रॉपर्टी को. Because of their ability to shine and reflect light, मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी. ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं इसलिए बहुत ज्यादा शाइन मारते हैं. तो ये आपका गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम है ना, इनकी हम ज्वेलरीज बनाते हैं एंड डेकोरेटिव आर्टिकल्स. ठीक है. नॉन मेटल्स. मोस्ट नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस एंड डल. एग्जाम्पल सल्फर एंड फोस्फोरस, ग्रेफाइट, diamond and iodine crystals are exception as these shine. Color. Metals. Most metals are white or silver gray. They are however few exceptions. For gold is yellow and copper is reddish brown. ठीक है. Some non-metals are colorless while some are colored. For example, chlorine is a greenish yellow gas. Bromine is a brown liquid. Iodine violet soiled. Oxygen, nitrogen are colorless gases. इनके कलरिंग नहीं होते. हार्डनेस. Metals. Most of them are hard like iron, aluminium. Through potassium and sodium are soft and can be cut with a knife. Non-metals. Non-metals are generally soft. Diamond is an exception. It is the hardest substance known. Malleability. This means that the metal can be hammered into sheet. आप इसकी शीट्स बना सकते हैं पतली पेपर की तरह. हैव यू सीन अ ब्लैक स्मिथ? लोहार देखा है आपने फाउंड्री में काम करता हुआ? ही बीट्स आयरन इनटू थिन शीट्स. वो हथौड़ा मार के थिन शीट्स बना देता है आयरन की. मेकिंग वेरियस इम्प्लीमेंट्स. मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा आर हैमर्ड इनटू शीट्स एंड यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड ऑर्नामेंट्स. ठीक. नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड कैनॉट बी बीटन इनटू शीट्स. ये शीट्स में नहीं बन सकते ना फॉइल्स में. ठीक है. Ductility. Metals. Most metals can easily be drawn into thin wires, which have a wide range of applications. The property by virtue of which means metals can be drawn into thin wires is called ductility. अब मेटल से आपने थिन शीट में भी कर दिए, जो वायर्स बनते हैं उस प्रॉपर्टीज को कहते हैं डक्टिलिटी. गोल्ड, सिल्वर आर द टू ऑफ द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स नोन. सबसे ज्यादा डक्टाइल होते हैं ये दोनों, गोल्ड और सिल्वर. Other metals that can be drawn into wires include copper, aluminum, tungsten. कॉपर का वायर आपकी घर के तारों में डलता है.
ठीक है, और टंगस्टन का वायर आपके डलता है बल्ब के फिलामेंट में। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, इनके तार नहीं बन सकते। दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर। फॉर एग्जांपल when non-metals such as sulfur and phosphorus are stretched, they break into pieces and do not form a wire. वो टूट जाते हैं, वायर नहीं बना पाते। Thermal conductivity. Metals are good conductors of heat and are therefore used for making cooking utensils. Cooking utensils के लिए thermal conductivity का प्रॉपर्टी है। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब आप तवे को आग के ऊपर रखोगे तो गर्म हो जाता है जल्दी से, ये होती है कंडक्टिविटी। नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। डायमंड विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज एन एक्सेप्शन, डायमंड है एक्सेप्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आर देयरफॉर यूजफुल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स। नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट विच इज गुड कंडक्टर ऑफ एक्सेप्शन, ग्रेफाइट एक्सेप्शन है आपका, वो गुड कंडक्टर होता है, बाकी सारे बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। Sonority. Metals. When metal pipes strikes each other, they produce a ringing sound. The property by virtue which means metals object producing a ringing sound which when struck with a hard object is called sonority. जब आप किसी जैसे आपके घर पे थाली है, प्लेट को आप किसी भी चम्मच से मारना तो उसमें से रिंगिंग साउंड आती है, ठीक है, तो वो हो गई इसकी प्रॉपर्टी सोनोरिटी की। ऑब्जेक्ट्स लाइक विंड चाइम बेल्स मेक यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, बेल्स होती है मंदिर की वो, और विंड चाइम्स। नॉन मेटल्स प्रोड्यूस अ डल साउंड व्हेन स्ट्रक विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट, नॉन मेटल पे जब आप मारोगे कुछ भी तो वो डल साउंड देते हैं, ठीक है, रिंगिंग साउंड नहीं आएगी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये अच्छे से पढ़ना, ये आपके लिए नया है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज, 5 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद बेसिस एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मोस्ट मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, मेटल plus oxygen is metal oxide, okay. So sodium react vigorously with oxygen present in the air to form sodium oxide, sodium जब ऑक्सीजन से होता है तो सोडियम ऑक्साइड बन जाता है। as a result it catches the, if left open it is therefore kept immersed in kerosene, इसे केरोसिन में डाल रखते हैं सोडियम को। तो जब 4 सोडियम के आयन एक ऑक्सीजन के आयन से मिलते हैं तो ये बनता है हमारा 2Na2O, Na2 होता है आपका सोडियम ऑक्साइड, ठीक। मेटल प्लस ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड, सोडियम प्लस ऑक्सीजन मेटल प्लस ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड, सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड, ओके। मैग्नीशियम ऑन हीटिंग, बर्निंग इन एयर विद अ डेजलिंग व्हाइट लाइट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं। तो मैग्नीशियम आपने जलाया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिले तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। मेटल प्लस ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड होता है। तो द मेटेलिक ऑक्साइड्स फॉर्म बेसिक इन नेचर एंटर रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, इसलिए वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर बना देते हैं जब उसमें डिप करेंगे। नॉन मेटल्स लाइक कार्बन सल्फर एंड फॉस्फोरस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक, ठीक है। सो these oxides are called acidic oxides and they form acid which dissolved in water, acid बनते हैं इससे जो dissolved in water। जैसे मेटल प्लस ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड था, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। कार्बन बर्न्स इन एयर, मतलब ऑक्सीजन के साथ हुआ टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो इसलिए C प्लस O2 CO2 हो गया। ऐसे मत याद करना कि CO2 ऐसे हो गया, वो अलग हिसाब है, पर ये C प्लस O2 CO2 होता है आपका। सल्फर बर्न्स इन एयर, सल्फर है हवा मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। सल्फर S प्लस O2 SO2, ओके। S प्लस O2 SO2, S प्लस O2 SO2 आ गया आपका। बाकी नेक्स्ट वीडियो में।